Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata यह है श्लोक संख्या 21 एंड शीर्षक इसका है डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा फॉर द्वारका, यानी हस्तिनापुर से भगवान श्री कृष्ण का जो जाना हो रहा है द्वारका की तरफ। तो श्लोक प्रभु स्टार्ट करें प्रभु। या प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। तो श्लोक इस प्रकार से, सवै किलायम पुरुष पुरातनो सवै किलायो पुरुषं पुरातनो यैकासीद विशेष आत्मनि य एक आत्मानि अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे निमितात्मन् निशि सुप्त शक्तिषु निमिलात्मनो निशि सुप्त शक्तिषु। So, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. They said, here he is, the original personality of Godhead, as we definitely remember him. He alone existed before the manifested creation of the modes of nature, and in him only, because he is the Supreme Lord, all living beings merge, as if sleeping at night, their energy suspended. Purport: there are two types of dissolution of the manifested cosmos. At the end of every 4,320,000,000, which is 432 crores solar years, when Brahma, the lord of one particular universe, goes to sleep, there is one annihilation. And at the end of the Lord Brahma's life, which takes place at the end of the Brahma's 100 years of age in our calculation, at the end of 8,640,000 crores, 8,640,000,000, which is 864 crores into 30, which is 30 days, into 12, which is 12 months, into 100 solar years. There is complete annihilation of the entire universe. And in both the periods, both the material energy called Mahatattva and the marginal energy called Jivatattva merge in the person of Supreme Lord. The living beings remain asleep within the body of the Lord until there is another creation of the material world. And that is the way of creation, maintenance and annihilation of the material manifestation. The material creation is affected by the interaction of the three modes of material nature set in action by the Lord, and therefore it is said that the Lord existed before the modes of material nature were set in motion. In the Shruti mantra, it is said that only Vishnu, the Supreme Lord, existed before the creation, and there was no Brahma, Shiva, or other demigods. It is called Suptotitha Nyaya, or awakening from sleep and again engaging in one's respective continuous duty. When a man is asleep at night, he forgets himself, what he is, what his duty is, and everything on his waking state. But as soon as he awakens from slumber, he remembers all that he has to do and thus engages himself in these prescribed duties. The living being also remain merged in the body of Mahavishnu during the period of annihilation. But as soon as there is another creation, they arise to take up their unfinished work. This is also confirmed in Bhagavad Gita, chapter 8, shloka 18 and 19. The Lord existed before the creative energy was set in action. The Lord is not a product of material energy. His body is completely spiritual, and there is no difference between his body and himself.
Before creation, the Lord remained in his abode, which is absolute and one. Hare Krishna. Om Agyantimirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Sivakdadantikam. Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो यहाँ पर प्रभुपाद इस जो अनुवाद और तात्पर्य के माध्यम से हमको समझा रहे हैं, और उन्होंने वहां पर एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पर पहले तो ये बता रहे हैं कि भाई जो ये पूरी कायनात जो भी हमारे जिसको बोलते हैं कि भाई पूरा यूनिवर्स इसका कैसे समाप्ति होती है, तो दो प्रकार का उन्होंने दो समय पे होता है जो उन्होंने बताया है। एक तो जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन, तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितने साल का है हमारे हिसाब से, जो हमारी पृथ्वी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उसके हिसाब से कितने वर्ष क्या बता रहे हैं एक दिन, तो बोला 432 करोड़ साल ये उनका एक दिन है। मतलब वो सिर्फ दिन, और 24 घंटे यानी ब्रह्मा जी का 24 घंटे बताएंगे तो कितना होगा 864 करोड़ 864 करोड़ साल ये ब्रह्मा जी का 24 घंटे का एक दिन होता है। तो इसमें पहले बताते हैं कि सिर्फ ब्रह्मा जी के जो दिन के अंदर जैसे उनका दिन समाप्त होता है तो वहां ये पूरी प्रलय आती है जिसके अंदर ये जो पूरा यूनिवर्स है पूरा खत्म हो जाता है। और दूसरा जो बता रहे हैं कि दूसरे प्रकार का प्रलय कब आता है, जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं। ब्रह्मा जी की उनकी आयु के 100 वर्ष पूरे होते हैं। ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष जैसे मैंने बताया उसका कैलकुलेशन श्रील प्रभुपाद ने बताया है तात्पर्य के अंदर कि 864 करोड़ ये जो उनके दिन और रात हैं, और उसके बाद में 30 से उसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में 30 यानी दिन हो गए, और उसके बाद में 12 महीने यानी 12 मंथ्स, और उसके बाद में उनके 100 साल। तो इतनी आयु लंबी होती है, तब उसके बाद में सेकंड जो है प्रलय आता है जिसके अंदर टोटल सब नाश हो जाता है। तो उस समय पर क्या स्थिति होती है, तो यहाँ पर बताया है कि जो महतत्व और जीव तत्व ये दोनों भगवान के अंदर समा जाते हैं, और ये कंडीशन ये पता नहीं चलता, हम लोगों को पता नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता, तो प्रभुपाद ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर तात्पर्य और अनुवाद के अंदर उदाहरण दिया है, और उदाहरण के समझाया है कि जिस तरह हम लोग कोई कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद में रात को हम लोग जब सोते हैं, तो जब हम गहरी नींद में होते हैं, पूर्ण रूप से सोए हुए रहते हैं, तो हमको पता नहीं चलता हम कहाँ पर हैं, क्या है। भले कितने भी अच्छे बिस्तर पे हम सोए हो, कितनी भी अच्छी सिचुएशन के अंदर हम सोए हो, मगर अगर हमारी गहरी नींद है तो हमको ये भी पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर हैं, तो खटिया पे सोए हुए हैं या मलमल के बिस्तर पे सोए हुए हैं, तो ये हमको पता नहीं चलता। और हम सब भूल जाते हैं, जो भी हम कार्य कर रहे थे पूरे दिन में, जो हम कार्य कर रहे थे वो सब भूल जाते हैं, और जब हम उठते हैं तो फिर हम वो कार्य करना वापस शुरू कर देते हैं। तो ठीक उसी तरह जब यहाँ पर प्रलय आती है, तो प्रलय आने से सब नाश हो जाता है, सब भगवान के अंदर समा जाते हैं। और जब वापस निर्माण होता है, वापस ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान की नाभि से कमल के अंदर उनका उत्पन्न होते हैं, और फिर उनको ज्ञान मिलता है, फिर वो पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। तो ये जब तक नहीं होता तब तक हमको कुछ भी पता नहीं चलता, ये सब हमारे नींद के अंदर ही हो जाता है, और जब हम वापस उठते हैं तो हमको फिर कार्य करना पड़ता है। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर जो 3 गुण हैं, सतो रजो और तमो गुण, इसके प्रभाव से ये सब होता है। और भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जो श्रुति मंत्र है, इट इज ओनली विष्णु, वहां पर बताते हैं श्रुति मंत्र इट इज ओनली विष्णु, जो भगवान विष्णु है वो भगवान है, और वो ब्रह्मा जी, शिव जी और जितने भी देवी देवता हैं उनसे पहले उनका क्रिएशन है। क्रिएशन इधर नहीं, क्रिएशन नहीं है क्योंकि वो तो है,
क्रिएशन तो वो होता है जो बाद में उत्पन्न होते हैं, जो बाद में पैदा होते हैं। तो यहाँ पर भगवान जो वो ऑलरेडी अपने धाम में होते हैं और धाम के अंदर जो है निवास करते हैं, और वो धाम एब्सोल्यूट है। उनको जो ये पूरी प्रलय आती है तो प्रलय से उनका कुछ भी मतलब उनका विनाश नहीं होता, क्योंकि वो इन सब से परे है। तो यहाँ पर, और ये जो है भगवत गीता के 8वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक के अंदर इसकी भी पुष्टि की गई है। तो यहाँ पर ये बात हमको समझना चाहिए कि भगवान जो है ही इज एब्सोल्यूट एंड ही इज वन, और वो इन सब जो 3 गुणों से परे है और सभी देवी देवता इनके अधीन है। अब ये जो मतलब ये कौन बता रहा है, तो यहाँ पर जो अगर हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इस श्लोक का, तो दे सेड, यहाँ पर लिखते हैं उन्होंने कहा। तो उन्होंने किसने कहा, तो इसको समझने के लिए हमको इससे पहले वाले श्लोक को जरा हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो इससे पहले वाला जो श्लोक है, ये श्लोक संख्या है 21। तो 20वें श्लोक के अंदर इसके बारे में बताया गया है कि कौन ऐसा कह रहा है। तो उसका ट्रांसलेशन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें अंदर क्या बता रहे हैं कि absorbed in the thoughts of transcendental qualities of the Lord, who is sung in selected poetry, the ladies on the roof of all the houses of Hastinapur began to talk of him. मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि हस्तिनापुर की घर के अंदर जितनी भी घर हैं, उनकी छतों पे जो मतलब जितनी भी माताएं खड़ी थी वो भगवान के बारे में बात कर रही हैं। तो एंड उसके अंदर प्रभुपाद ट्रांसलेशन के उस श्लोक के ट्रांसलेशन लिखते हैं, दिस टॉक वाज मोर अट्रैक्टिव देन द हिम्स ऑफ वेदास। तो वेद के अंदर जितने भी श्लोकास हैं उनसे भी ज्यादा मधुर और बहुत ही प्रभावित, बहुत ही आकर्षित करने वाली जो चर्चा थी, ये बातें कर रही थी जो माताएं जो हस्तिनापुर के जितने भी घर थे उनकी छतों पर खड़े होके वो बात कर रही थी। तो ये कैसे संभव है, मतलब जो ये औरतें हैं, जो ये लेडीज हैं, जो ये माताजीज हैं, वो इतनी मतलब हाई फिलोसफी कैसे बात कर सकते हैं, ये कैसे संभव है। तो प्रभुपाद उसके जो अध्याय मतलब उस श्लोक के बारे में जब बताते हैं तो उसमें उस श्लोक के अंदर एक शब्द आता है, यानी जो श्लोक संख्या 20 है उसके अंदर एक शब्द आता है जो उसको कहा गया है उत्तम श्लोका। तो उत्तम श्लोक का मतलब क्या है, तो उत्तम श्लोक मतलब यहाँ पर पहले तो बताते हैं उत्तम का मतलब क्या है। तो उत यानी उस पार, और तमा यानी अंधकार। तो अंधकार के उस पार क्या है, उस अंधकार के उस पार उजाला है। और अंधकार किसका प्रतीक बताते हैं, तो अंधकार बताते हैं अज्ञान का प्रतीक है। और उस पार यानी जहां पर जो अंधकार नहीं है, जहां पर रोशनी है, और जहां पर मतलब पूरा जो है इट इज टोटली एफल्जेंस है। तो वहां पर वो एफल्जेंस जो उसको बोलते हैं, इतना सुंदर एफल्जेंस है, इतनी सुंदर रोशनी क्या है, तो वो जो है इग्नोरेंस का विपरीत होता है, जो आदमी को नॉलेज हो यानी ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पर इग्नोरेंस है, वहां पर टोटल फुल नॉलेज है। तो उत्तमा, तो उत्तम किसके बारे में बता रहे हैं, तो ये बोलते हैं इसको रेफर कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो उत्तम, तो इसी संदर्भ के अंदर हम 10वें अध्याय का पहला एक 10वें स्कंद का एक पहला अध्याय है और श्लोक संख्या 4 उसके अंदर आता है, निवृत्त तर्षय उपगीयमानात् भव औषध श्रोत मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात्। तो वहां पर भी ये शब्द आता है उत्तम श्लोक गुणानुवादात्। तो उसके अंदर जो है उन श्लोक के अंदर क्या बताया गया है, तो श्रील प्रभुपाद उसका उत्तम श्लोक का जो उसका वर्ड ट्रांसलेशन बताते हैं, ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, यानी भगवान के बारे में जो भी कहा जाए, भगवान के बारे में जो भी कहा जाता है वो हमेशा उत्तम होता है। यानी वो ज्ञान, वो आपको अंधकार से ज्ञान की तरफ ले जाता है, आपको नॉलेज की तरफ ले जाता है, इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पर ये प्रभुपाद जो बोलते हैं तमा, तो तमा किसको कहा गया है, तो तमा इस भौतिक जगत को कहा गया है। भौतिक जगत को तम क्यों कहा गया है, तो बोलता है भौतिक जगत को इसलिए तम कहा गया है कि यहाँ पर सब लोग जो अंधकार के अंदर इग्नोरेंस है, उनको पता नहीं है, बस वो अपनी जो इच्छाएं हैं उनको संपन्न करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए, उनको तुष्टि देने के लिए वो कार्य करते हैं।
तो यहाँ पर फिर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, इतनी बड़ी बड़ी थियोरी लिखते हैं, मगर वो पूर्ण रूप से अंधकार के अंदर है, अज्ञान के अंदर है। तो वहां पर श्रील प्रभुपाद रेफर करते हैं डार्विन्स की थियोरी के ऊपर, बोलते हैं कि भाई ये जो जगत बना हुआ है वो किसी केमिकल इवोल्यूशन से वो बना है, किसी केमिकल मिक्स जो है ये द्रव्य लिए हैं, कुछ द्रव्यों को जो है उनको मिक्स किया है, उनको जो एक दूसरे से जोड़ा है, और उसके अंदर से ये पूरी दुनिया बनी है, ये पूरा जो नेचर के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं वो उससे बनी है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक उनकी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से एक व्यक्ति आया था जिसको नोबेल प्राइज मिला था। तो वो वहां पर प्रभुपाद के बाद वहां पर उनके लेक्चर्स के अंदर बताते हैं प्रभुपाद, तो उन्होंने जो ये कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी से जो बंदा आया था, जो नोबेल प्राइज होल्डर था, उसने आके लेक्चर दिया और उसने कहा कि ये पूरा है, अपना पूरा विश्व है और वो नेचर है, ये पूरा एक केमिकल से बन सकता है, और ये मनुष्य जो शरीर है वो भी केमिकल से बना हुआ है। तो प्रभुपाद के जो एक डिसाइपल थे उनका नाम था स्वरूप दामोदर। तो स्वरूप दामोदर ने डॉक्टरेट किया हुआ था केमिस्ट्री के अंदर। तो स्वरूप दामोदर ने वो प्रोफेसर को जिसको नोबेल प्राइज मिली थी उसको कहा कि ठीक है, अगर आप कहते हो कि मनुष्य का जो जीवन है वो एक केमिकल कॉम्बिनेशन है, तो आपको कुछ केमिकल चाहिए वो हम आपको देते हैं, क्या आप एक जो जान यानी एक लाइफ बना सकते हो? तो उसने वहां पर उसने जवाब दिया दैट आई कैन नॉट से, यानी वो मैं बोल नहीं सकता कि मैं बना सकूंगा कि नहीं। तो सब लोग वहां पर जितने भी प्रभुपाद के लेक्चर सुन रहे थे सब हंसने लगे। तो बोला जब तुमको नोबेल प्राइज मिला है, तुम बड़ी बड़ी थियोरी लिखते हो और तुम ये भी तुम कहते हो कि ये सब केमिकल से यानी द्रव्यों से बना हुआ है, तो हम तुमको सब द्रव्य देते हैं, और तब उसके बाद तुम क्या कहते हो? पहले तुम कहते हो कि द्रव्यों से बने हुए हैं, और द्रव्यों का बात जब हम आपको वो कहते हैं कि हम आपको द्रव्य दे रहे हैं, कि आपको जो भी केमिकल्स चाहिए वो हम आपको दे रहे हैं, तो आप एक जीवन क्यों नहीं बना सकते? तो बोलता है दैट आई कैन नॉट से, मैं वो नहीं बता सकता कि मैं बना सकूंगा कि नहीं, मगर ये है ऐसा। तो जो चीज है अगर ऐसी है तो तुम उसको बना के दिखाओ, और नहीं है तो फिर तुम अपने ऐसे तथ्य बोलो ही नहीं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा जो ये कहते हैं हमेशा वो ह्यूमन लाइफ किस लिए है, मनुष्य को जीवन क्यों मिला है? तो बोला ये मनुष्य को जीवन का सही माने में मतलब क्या है? अथो ब्रह्म जिज्ञासा। हमको जो ह्यूमन लाइफ मिली है इट इज मेंट फॉर डिफरेंट बिजनेस। वो डिफरेंट बिजनेस क्या है? वो ये अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हमको नहीं करना है। वो जैसे भाई खाना खाना है, सोना है, अब बच्चे पैदा करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को दूसरों से बचाना है। तो ये तो कोई जानवर भी करता है। तो बोले जानवर करता है, मगर ह्यूमन लाइफ हमको क्यों मिली है? ह्यूमन लाइफ हमको मिली है क्योंकि हमारा उद्देश्य दूसरा है, ब्रह्म की जिज्ञासा, कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, इस पृथ्वी पे क्यों आया हूँ और मेरा कार्य क्या है। अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो यानी इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो वो कारण क्या है? मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरा क्या कार्य है, मुझे क्या, मेरा पहला तो क्या कारण है, उसके बाद मेरा क्या कार्य है। तो ये दो चीजें जो है, जो आदमी सोचता है तभी उसके अंदर, उसको कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा, यानी ब्रह्म के बारे में जानना कि मुझे किसने जन्म दिया। ठीक है, मेरे माता पिता ने दिया, मेरे माता पिता को किसने दिया, उनके माता पिता, उसके माता पिता को, यानी एंड ऑफ द टाइम यू हैव टू फाइंड आउट कि ऐसे कौन था जिसने मुझे जन्म दिया और उसका कनेक्शन क्या है और मेरा यहाँ पर जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये हमको जानना जरूरी है। ये सही माने में अगर हम करेंगे तो ये मनुष्य जीवन को हम सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले तो ब्रह्म जिज्ञासा होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर प्रभुपाद बताते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं। दो प्रकार के लोग कैसे होते हैं? तो बोला एक ऐसा होता है जिसको वन क्लास ऑफ द मैन इज कॉल्ड ज्ञानवान, यानी जिसको ज्ञान है, जिसको ज्ञान की इच्छा है, ज्ञान को पाने की जो इच्छा है, और वो ये इच्छा प्रकट करता है कि मुझे, मेरा यहाँ पर कार्य क्या है, मेरा यहाँ पर मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। तो वो ज्ञानवान। और दूसरा बोलते हैं, दूसरा कौन सा है? तो बोले माया अपहृतो ज्ञाना, जिसकी माया ने जिसका ज्ञान का अपहरण कर लिया, उसको हाईजैक कर लिया, उसको जो है किडनैप कर लिया है। तो माया ने जब अगर किसी का ज्ञान का जो है अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया, तो ऐसे दो प्रकार के, एक तो होता है जो ज्ञान के पीछे जाता है, और दूसरा जो होता है ज्ञान, जिसका ज्ञान जो है माया ने
अपहरण कर लिया। तो ये भगवद गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक के अंदर इसके बारे में बताया गया है। तो ये सब जो जब हम पढ़ेंगे, जब हम इस भगवद गीता को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तो हमको ये सब ज्ञान मिलता है कि 2 प्रकार के लोग हैं। तो इन 2 प्रकारों के जो लोग हैं, इनके अंदर क्या अंतर है? तो एक तो जो जिसको ज्ञान नहीं है, जो ज्ञानवान है, वो हमेशा उसको पता है कि सही मायने में ज्ञान क्या है, कि सही मायने में ज्ञान ये है कि मैं जो है भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ, या मैं भगवान का दास हूँ, फिर भले कृष्ण को माने या नहीं माने, जबकि वो फैक्ट है। फैक्ट यही है कि भगवान ही श्री कृष्ण है, कृष्ण ही श्री भगवान है। तो भगवान का मैं दास हूँ और मेरा कार्य है कि उनके बताए हुए जो नियम है उनका पालन करना और अपने जीवन को व्यतीत करना, और जो मेरे साथ में जो भी जुड़े हुए हैं उनको भी भगवान की सेवा में लगाना। तो ये उस व्यक्ति का जो एक क्वालिटी है जो ज्ञानवान है। और जिसका माया ने ज्ञान को हाईजैक कर लिया, उसका क्वालिटी क्या होगा? वो ये कहेगा कि जो भी ज्ञान मुझे यहाँ पर मिला है, भौतिक ज्ञान जो मुझे मिला है, वो मैंने अपने आप एक्वायर किया है, मैंने अपने आप उसको जमा किया है, और मैं बहुत होशियार हूँ और मैं बस ये हूँ। और वो हमेशा उसके अंदर अहंकार रहेगा। तो जैसे वो हम लोगों ने चेक कर लिया कि वो जो प्रोफेसर आया था जिसको नोबेल प्राइज मिल रहा था, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा था, मगर उसको जब कहा गया कि तुमको वही केमिकल्स देते हैं, तुम बना के दिखाओ, तो बोलता है वो मैं बता नहीं सकता कि कैसे बनेगा, वो मैं कह नहीं सकता। तो कहने का मतलब है कि ऐसे जो जिनके अंदर अहंकार आ जाता है, जिनका ज्ञान है माया ने अपहरण कर लिया है, तो ऐसा एक प्रकार के व्यक्ति होते हैं। दूसरे जो ज्ञानवान होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो भी हमने देख लिया। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो है अपने लेक्चर के अंदर बताते हैं, तो ये कैसे हमको पता चलता है कि भाई कौन ज्ञानवान है और कौन जो है जिसका ज्ञान अपहरण हो चुका है। तो बोलता है ये बहुत ही आसान है, भगवद गीता के अंदर बताया गया है। तो जो ध्यानपूर्वक भगवद गीता पढ़ेगा उसके अंदर से उसको उन दोनों के अंदर अंतर भी पता चल जाएगा कि दोनों के बीच के अंदर अंतर क्या है। तो यहाँ पर उन्होंने जो श्रील प्रभुपाद है वो बताते हैं कि शास्त्रों के अंदर बताया गया है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, ये भगवद गीता का 7वां अध्याय और 15वां श्लोक है। तो बोलता है जिसका ज्ञान अपहरण हो चुका है वो कौन है? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परितोज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। वो कैसे उनका व्यवहार कैसे रहेगा? उनका व्यवहार होगा राक्षस जैसा, असुरम जैसा। क्यों? क्योंकि उनका माया ने ज्ञान हर लिया है। तो वो बोलेंगे भगवान होता ही नहीं और मैं ही भगवान हूँ, ऐसे लोग होते हैं। तो ये एक प्रकार के लोग हैं। और दूसरा जो ज्ञान है वो क्या, दूसरे जो जिनको ज्ञानवान है वो क्या करेंगे? वो कहेंगे बहुनाम जन्मना अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। वो श्लोक संख्या 7वें श्लोक का, भगवद गीता के 7वें श्लोक का 19वां श्लोक है, जहां पर वो बताते हैं कि वो क्या कहेगा? वो हमेशा ये कहेगा कि वासुदेव सर्वमिति, जो कुछ है वो सब भगवान श्री कृष्ण का है, वासुदेव ही सब कुछ है, यानी भगवान श्री कृष्ण ही है। तो जब हम ये बार बार सुनेंगे और जब हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, तब हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है, हम मतलब तभी हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है, हम जब कृष्ण के बारे में सुनेंगे। तो जो ये सब हम क्यों सुन रहे हैं, क्यों ये बोल रहे हैं कि जब हम बार बार कृष्ण के बारे में सुनेंगे, तब हमारे अंदर ये ज्ञान आएगा कि भगवान श्री कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और भगवान श्री, और ये कब होता है? जब हम बार बार सिर्फ भगवान के बारे में सुनेंगे। तो ऐसा कैसे संभव है? और हम मतलब भगवान के धाम में कैसे जा सकते हैं? तो बोला जो अगर तुम भगवान के धाम में जाना चाहते हो तो कंटिन्यूअसली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअसली भगवान के बारे में सुनना है। तो ये कैसे हमको ज्ञान मिलता है? तो ये अगर हम भागवतम के पहले स्कंद का 8वां अध्याय और 36वां श्लोक, जिसके अंदर कुंती महारानी क्या कहती है? श्रुवंती गायंती गृणंती अभीक्ष्णश स्मरंती नंदंती तवे हितम जना तदेव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। कुंती महारानी क्या कहती है? ओ कृष्णा, दोज हु कंटिन्यूअसली हियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोज हु कंटिन्यूअसली हियर, chant and repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet which can stop from the repetition of birth and death. तो यहाँ पर हमको क्या करना है? हमको सतत भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के बारे में सुन के बाद में भगवान के बारे में गुणगान करना है, और
रिपीट करना है, बार बार बोलते रहना है। और न केवल भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, भगवान के नाम हैं, भगवान के गुण हैं, इनके बारे में हमको चर्चा करनी है। साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि हम उसके अंदर जो दूसरे ऐसा करते हैं, हम तो करेंगे, हमको आनंद आएगा, जो दूसरा ऐसा करते हैं और उससे भी हमको आनंद प्राप्त होता है। जब हमारी चेतना ऐसी हो जाएगी तब हमको भगवान के दर्शन होंगे, और भगवान के दर्शन मिलने से क्या हो जाएगा, हमको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हम छूट सकते हैं। तो उसके बाद में कुंती महारानी हमको बताती है कि हमको भगवान से किस तरह प्रार्थना करनी है। तो वो क्या कहती है, तयिमेव नन्य विषयात् मतिर् मधुपते सकृत रतिमुद्वता अद्दा गंगे गौवद उदन्वती। तो यहाँ पर वो क्या कहती है कि O Lord of Madhu, the Ganges forever flow to the sea without hindrance. Let my attraction be constantly drawn unto you without being diverted to anyone else. तो हमको भगवान के बारे में, भगवान से प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, तो ये प्रार्थना करने का भी तरीका उन्होंने बताया कि हम इतने जो है निपुण नहीं है कि हम अपनी स्तुतियां कर सकें। तो हमको स्तुति जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके माध्यम से हमको पता चलता है कि किस प्रकार भगवान को मांगना चाहिए और क्या मांगना चाहिए। तो यहाँ पर वो बता रही हैं, जो कुंती महारानी क्या बता रही है कि भाई मेरा जो ध्यान है पूर्ण रूप से आपकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। और किस तरह आकर्षित होना चाहिए, बोला जिस तरह समुंदर से जो है गंगा जी आकर्षित होके, गंगा जी का ध्येय क्या है, पूर्ण सीधा जो जाके समुद्र से मिलना है, ओशन से जाके मिलना है। तो उसके सामने कितने भी बीच में तकलीफ आते हैं, कितने भी पहाड़ आते हैं, कितने भी पत्थर आते हैं, वो उनको डॉज करते 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 वो सीधी जाके समुद्र से मिलती है कि उनका पूरा अटेंशन फोकस है कि समुद्र से मिलना है। तो ठीक उसी तरह हमको भी भगवान से, हमको पूरा ध्यान भगवान की तरफ होना चाहिए कि हम भगवान से जाके मिलें। और कैसे मिलें, तो बस अट्रैक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे गंगा जी का अट्रैक्शन टुवर्ड्स ओशन है, उसी तरह हमारा अट्रैक्शन विदाउट एनी हिंड्रेंस, कोई भी बीच में आपत्ति आए, कोई भी तकलीफ आए, तो उसको वो हमारे जो उद्देश्य से हमको विचलित न करे, ऐसा हमको हमारा जो है कंसंट्रेशन होना चाहिए और हमारा ध्यान होना चाहिए। तो इन सब चीजों से हमको क्या ज्ञात होता है, तो यहाँ पर पहले तो ये जो श्लोक संख्या जो 20 थी उसके अंदर बताया गया कि जितनी भी वहां पर औरतें थी, जितनी भी माताएं थी, वो कहाँ पर गई थी, वो और उनको ज्ञान कहाँ से मिला था। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उनको ज्ञान कहाँ से मिला था। तो आपको ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो मतलब है, कोई आपको वेदों का जो या संस्कृत का आपको ज्ञानी होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास भाव है, भाव के माध्यम से, और आपने जो शुद्ध भक्तों से सुना है भगवान के बारे में, वो अगर आपने ग्रहण कर लिया, या उनका जो उनकी कृपा, उनकी मर्सी आपके ऊपर हो गई, तो अपने आप जो भी आप बोलोगे वो भगवान उत्तम श्लोक बोलोगे, यानी आप भगवान के बारे में गुणगान करोगे। तो भगवान के बारे में गुणगान करोगे तो ये कैसे संभव है, तो बोलता है व्हेन द लेडीज जो बात कर रही थी वो दे वर टोटली एब्जॉर्ब, वो हमेशा भगवान के बारे में ही सोचती थी और भगवान की जो गतिविधियां थी उसके बारे में ही बात करती थी। तो जब ये अगर हम करते हैं तो उनसे इन श्लोकों के तात्पर्य से और अनुवाद से हमको ये पता चलता है कि अगर भगवान के बारे में हम सतत समझते रहेंगे, भगवान के बारे में सतत जानकारी रखेंगे और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो हमारी जितनी भी मतलब भगवान के जो भी गतिविधियां हैं उनके बारे में हम सोचते रहेंगे, लीलाओं के बारे में सोचते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा कि हमारे अंदर जो हमारी चेतना है वो इतनी शुद्ध हो जाएगी भगवान की कृपा से। जब हम भगवान के बारे में बार बार सोचते हैं तो भगवान की ही कृपा से हमारी चेतना साफ हो जाएगी। तो इसके लिए हमको कोई है अपना संस्कृत का स्कॉलर या ऐसा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर पहले तो हमने भगवान की गतिविधियों के बारे में सोचा, उसके बारे में भगवान की गतिविधियों के बारे में सुना, और उसके बाद में हमने वो कहा। तो ये जब वो जो कहने वाली बात होती है तो वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं उत्तम श्लोक। और उसके लिए हमको कोई संस्कृत या किसी भी जो और कोई भाषा का जो है वो उसके अंदर मास्टरी नहीं करनी है। तो कहने का मतलब, और वो क्या हो जाएगा, जो भी हम कहेंगे, अगर हम भगवान के बारे में सतत सुनते हैं और उनका गुणगान करते हैं, तो वो जो है वेदिक के अंदर, वेदों के अंदर जो श्लोक बताए गए उससे भी ज्यादा मधुर होगा। तो ये यहाँ पर बात समझने की है।
And the talks of ladies were directly spoken of the Lord, and thus they were more pleasing to the heart. वो डायरेक्टली सिर्फ भगवान के बारे में बात कर रही है, इसके लिए वो मन को भी आनंद देती है जो ये बात है। तो उसके बाद में बताते हैं कि लैंग्वेज इज इमैटेरियल, जो तुमकी भाषा है, जो आप बोल रहे हो, वो उसका इतनी मान्यता उसको नहीं दी गई है, बट जो जिस विषय पे वो बात कर रही है, जो सब्जेक्ट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसके ऊपर बात कर रहे हो, यानी आप किसके ऊपर बात कर रहे हो, जो एब्सोल्यूट है, सुप्रीम है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के बारे में आप बात कर रहे हो, तो उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हमको ऐसी स्थिति में रहना है तो हमको क्या करना है, तो पहले तो इसको हम पूरा जो आज का क्लास है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान के बारे में चिंतन करो, भगवान के बारे में मनन करो और भगवान के बारे में गुणगान करो। ये जब करेंगे तो हम जो भी कहेंगे वो एक उत्तम श्लोक होगा। और उत्तम श्लोक के बारे में हमने जैसे सुना कि निवृत्त श्रेय उपगीयमानात् भव औषध श्रोत मनोविरांदा, इसके बारे में भी हमने पहले चर्चा की हुई है आगे पहले वाले क्लासेस के अंदर कि ये जो श्लोक है, मतलब जो भगवत गीता का भागवतम का 10वें स्कंद का पहला अध्याय और 4था श्लोक है, ये सही माने में अगर हमारा अपने जीवन में उतारें तो हम अपने आप को अमर बना सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले क्लासेस के अंदर बताया कि सर्वभौम प्रभु इस जो श्लोक के ऊपर, ये 10वें स्कंद का जो पहला अध्याय और 4था श्लोक है, इसके ऊपर उन्होंने बहुत ही सुंदर क्लास दिया है। इसका कहने का जिसमें वो बताते हैं कि भगवान का गुणगान करने से और भगवान के गुणगान को सुनने से, मतलब श्रवंती गायंती और स्मरणंती, जैसे फिर हमने उसमें भी देखा अपना कुंती महारानी की स्तुति के अंदर कि अगर हम ये करेंगे तो हम जो भी कहेंगे, हमारे मुख से जो निकलेंगे वो भगवान की भगवान के गुणों के बारे में चर्चा होगी। तो दैट विल बी उत्तम श्लोका। और ये अगर हम सतत करते रहेंगे तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट जाएंगे और हम अमर बन जाएंगे। हरे कृष्णा। क्लास इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब बहुत अच्छे भक्त हैं यहाँ पर, तो अपनी अपनी पॉइंट्स को अगर आपको ऐड करना है आप कर सकते हैं, कुछ करेक्शन करना हो तो करेक्शन करके मुझे बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास, बहुत मस्त क्लास, हरे कृष्णा। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आपने इतने सारे पॉइंट्स बताए आधे घंटे में, बहुत मस्त। प्रभु जी, एक जस्ट वो आपने जो इसके बारे में बात किया था ना, साइंटिस्ट के बारे में, प्रभुपाद जी ने बोला था कि मैं आपको चाहिए वो सब सॉल्यूशंस दूंगा, आप लाइफ को बना के दिखाइए। प्रभु जी एक्चुअली उसके ऊपर एक प्रभुपाद जी ने बीच में वो डार्विन के थियरी के बारे में बोला था लोगों को कि अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन्स फादर वाज अ मंकी, सो ही हैज थियराइज्ड फुलिशली। हरे कृष्णा। इसी के ऊपर एक जोक भी है ना, प्रभुपाद जी कैसे एग्जांपल्स रहते थे ना कि आदमी इसके ऊपर कुछ बोल ही नहीं सकता। अभी उसमें एक जोक था कि वो बेटा जो है, माँ जो है, एक बेटा है, वो अपनी माँ को कुछ पूछता है कि भाई माँ हम कहाँ से आए, तो पहले जाके अपने पिता से तो पिता को पूछता है, तो पिताजी हम लोग जो ह्यूमन बीइंग से कहाँ से आए, तो उसका बाप बोलता है डार्विन की थ्योरी समझ के उसके बोलते हैं वी केम फ्रॉम द मंकीज। तो फिर वो अपनी माँ के पास जाता है, माँ को पूछता है कि माँ हम लोग कहाँ से हैं, तो बोलते हमारे जो पूर्वज थे वो इंसान थे, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो बोला कि पापा तो ये कह रहे हैं कि वो मंकीज के इसमें से आए हैं। तो बोला आपके पापा जो हैं वो मंकीज के वंशज से होंगे, मगर मैं जो हूँ इंसान के वंशज से हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhu. Thank you for adding that point. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। बहुत ही अच्छा क्लास था प्रभु, बहुत सारे मतलब अनलिमिटेड पॉइंट्स थे उसमें, एंड बहुत अच्छे से जो था अपने एनिहिलेशन के बारे में कैसे था और कितना टाइम लगता है, तो वंडरफुल एक प्रभु, मतलब बहुत अच्छा, मतलब पॉइंट्स इतने सारे थे कि लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। एक्चुअली था एक बहुत सुंदर क्लास दिया था गोपाल हरि गोपाल प्रभु हैं, हमारे गॉड ब्रदर हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह उन्होंने क्लास दिया था। तो उस समय पे उन्होंने ये जो बोला ना 4 बिलियन 320 मिलियन, जब ये उन्होंने बोला ना तो तभी हम उस बात को इतना स्ट्राइक हो गया। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग इन द क्लास। मतलब उनका क्लास चल रहा था, मैं सोचने लगा, मैं बोला इतने साल उसके बाद में तो प्रलय आएगी, वो तो बात तब की तब है, मगर इतने साल हमको अगर सपोज हमने भगवान की भक्ति अभी नहीं की तो इतने सालों तक हमको मतलब इस चक्कर में तो पढ़ना पड़ेगा। जब एनिलेशन होगा उसके बाद में भी तो है, कंटिन्यूटी तो है, मगर इतने साल इधर 100 साल के बाद 100 साल का जब हम सोचते हैं तो हम इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। और इतने जन्म लेने पड़ेंगे, और इतने जन्म लेने के दरमियान, इतने जन्म लेने के बीच में हम लोगों को नॉट नेसेसरी कि हमको मनुष्य जन्म मिले, हमको कैसे कैसे जन्म मिलेंगे, कीड़े मकोड़े तितली पतंग कौवे काग, पता नहीं कैसे 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 जन्म मिलेंगे, वर्म इन द स्टूल एंड व्हाट ऑल बर्थ्स वी विल हैव टू टेक। तो वो जो है ना स्ट्राइक कर गया, और लिटरली आई स्टार्टेड एंड ही वाज एम्फसाइजिंग ऑन दैट फॉर सो लॉन्ग, बिकॉज वो जो है ना अभी थोड़े दिन पहले ही हैड कम फ्रॉम he had gone to Tamil Nadu and very very nice devotees हरि गोपाल प्रभु है, और उनकी पूरी फैमिली इतने और उनका बेटा जो सबसे यंगेस्ट है, हमारे गुरु महाराज का सबसे यंगेस्ट ये है अपना, जिसको बोलते हैं, इनको इनिशिएशन मिला है अभी अब की बार में। आई थिंक इज 12 और 13 इयर्स का है, उसको अभी इनिशिएशन जब गुरु महाराज आए थे तब उसको मिला था। तो पूरी फैमिली इतनी इंक्लाइंड है आध्यात्मिक इसमें मतलब प्रगति के अंदर। तो वो बता रहे थे कि भानुस्वामी महाराज ने लेक्चर दिया था वहां तमिलनाडु टेम्पल के अंदर, तो वहां पर उन्होंने बताया कि 4 बिलियन 320 मिलियन ईयर्स, तो इसके अंदर हमको कितने जन्म लेने पड़ेंगे, और हमारे एक एक कैसे कैसे जन्म मिलेंगे, और उसमें क्या गारंटी है कि हमको मनुष्य जन्म मिले। तो दैट वाज वेरी स्ट्राइकिंग एंड बात भी ऐसी हो गई। और फिर हम जो आज परपट पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी वही आ रहा है कि इतने जन्म होते हैं, और उस जन्म के अंदर हमको कब मनुष्य देह मिलेगी और कब हमको ये रियलाइजेशन होगा जो अभी हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से, कि उसके अंदर भी कौन ज्ञानवान है और कौन किसकी जो है ज्ञान को माया ने अपहरण कर लिया है। तो वो भी हमें इसमें आज के पर्पस के अंदर पढ़ रहे हैं। सो इट्स काइंड ऑफ कोइंसिडेंस एंड इट इज वेरी नाइस कोइंसिडेंस। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु। हाँ बोलो। बहुत ही वंडरफुल क्लास था, बहुत कुछ सीखने मिला। आपने जैसे लास्ट में बोल रहा था ना, जैसे भगवान का में हमेशा चिंतन मनन करना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब मैं कल पढ़ रहा था वहाँ पे भागवतम में, जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को लीला कथा बता रहा था, तो वहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी कह रहा था कृष्ण लीला वर्णना करते करते, तो वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोल रहा था गंगा जैसे त्रिभुवन को पवित्र कर देता है, त्रिभुवन को गंगा जैसे पवित्र करता है, तो ऐसे श्री कृष्ण का लीला जो सुनता है, तो ऐसे ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता, ये 3 प्रकार व्यक्ति को पवित्र कर देता है। वक्ता मतलब जो कृष्ण का बारे में बात कर रहा है, प्रश्नकर्ता जो प्रश्न करता है, और श्रोता जो सुन रहा है, ये तीनों प्रकार व्यक्ति जो है उसको बिल्कुल गंगा जी से त्रिभुवन का मतलब पवित्र करता है। तो ये तीनों प्रकार व्यक्ति को भी मतलब ये लीला कथा सुनने में पवित्र हो जाता है। तो छोटा से एक शेयर करने का, तो बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बहुत अच्छा क्लास, जैसे कि अपने ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन बताया, फिर तम मतलब भौतिक जगत के बारे में, फिर ब्रह्म जिज्ञासा क्या है उसमें ज्ञानवान और माया अपहरत ज्ञान वो जब बताया प्रभु जी, फिर गंगा अट्रैक्ट टुवर्ड्स ओशन वो भी, फिर शुद्ध भाव भक्ति क्या है, उत्तम श्लोक क्या है प्रभु जी, 24 आवर्स एंड लैंग्वेज मटेरियल, एवरी पॉइंट इज अमेजिंग प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और प्रभु जी इसमें एक चीज मुझे ऐड करना चाहता था प्रभु जी, जो मैंने सुना था कि अभी जो
साइंटिस्ट लोग हैं वो सब माइक्रोस्कोप से हर एक चीज फाइंड कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद उनके एक लेक्चर में बोल रहे थे कि ये जो माइक्रोस्कोप है ये भी वही आदमी ने बनाया है जिसका लिमिटेड नॉलेज है। थ्रू हिज लिमिटेड नॉलेज एंड थ्रू हिज लिमिटेड सेंसेस he created that machine and he is thinking that this is a perfect knowledge। वो खुद इम्परफेक्ट है और खुद परफेक्ट नॉलेज देना चाहता है। तो शिला प्रभुपाद बोले दिस इज रॉन्ग। तो एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। दूसरा ये चीज था प्रभु जी की शिला प्रभुपाद बोल रहे कि आप लोग सोलर एनर्जी के बारे में इतना सारा रिसर्च कर रहे हो कि अभी सब गाड़ी इसमें चलेगी, खाना इस पे बनेगा, लेकिन वो तो पूरा अपरंपरा कितने टाइम से सूरज आ रहा है और इसके ऊपर बहुत कुछ रिसर्च करने का जरूरत नहीं है आपको। फिर तीसरा एक चीज उन्होंने बताया कि लॉ ऑफ ग्रेविटी में कितना टाइम वो लोग ने वेस्ट किया। वो बोले थे लॉ ऑफ ग्रेविटी अगर आप बोल रहे हो तो भगवान राम जी का नाम लिखा और वो फ्लोट हो रहे थे पानी के ऊपर, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी चालू है आपका नहीं। तो वो बोल रहे थे कि these are the things like हम लोग एक ब्लाइंड आदमी को लेके जा रहे हैं and that is towards a deep dark well। So thank you Prabhuji for wonderful class। Hare Krishna। Thank you, Prabhu. Thank you for sharing all this very wonderful information. This will help, for retaining in our mind so that we can use them in the future whenever we are discussing with some devotees. So that's very wonderful। और जैसे मैंने पिछले कुछ क्लासेस के अंदर शायद मैंने डिस्कस किया था कि there is a difference between an invention and a discovery। So what we are doing is just doing the discoveries. We are not inventing anything because invention तो भगवान ने बना के रखा है, वो भगवान ने इन्वेंट किया है। हम लोग सिर्फ डिस्कवर कर रहे हैं जो चीजें हैं। अभी जो कितने 84 लाख योनियां बोली गई हैं, 8,400,000 स्पीसीज बताए गए हैं। 8,400,000 स्पीसीज अभी तक तो जो साइंस के उसके अंदर आए ही नहीं है। अब उन लोग तो अभी कभी देखते हैं तो बोलते हैं ये तो कोई नया जीव है, ये तो कुत्ते जैसा लगता है मगर ये है जो वुल्फ के जैसा इसकी क्वालिटीज हैं, मगर इसका जो ये है वो कुत्ते के जैसा है। सो व्हाट इज ऑल दिस नॉनसेंस? मतलब वो जीव तो था ना तभी, और उसके भी माँ बाप थे, यानी वो जीव भी कितने परंपरा से आया होगा। तो वो पहले ही भगवान ने जो है इन्वेंट करके रखा हुआ है। इट इज नथिंग टू डिस्कवर। तुम लोग जो कर रहे हो वो डिस्कवरी है। सो यू डोंट फाइंड से दैट वी हैव इन्वेंटेड। तो ये जो माइक्रोस्कोप की बात आप बता रहे हो, तो एक मैंने आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल साइंटिफिक फिक्शंस में, और साइंटिफिक जो मैं बहुत मतलब मुझे इंटरेस्टेड लगता है, तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था उसके अंदर साइंस के अंदर एक टाइप की बीमारी आती है जिस बीमारी के अंदर आंखों की रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि आपके हाथों के ऊपर जो बैक्टीरियाज है ना वो भी आपको एकदम क्लियरली दिखाई देते हैं। तो क्या ये पर्याप्त है? क्या ये सही है? तो वो बीमारी क्या मतलब सही है? तो इट इज वेरी रॉन्ग। बोलते क्यों? क्योंकि अगर आप अपने हाथों पे, आप तो 24 घंटे आपके शरीर के ऊपर बैक्टीरिया देखोगे, तो आप खाना कब खाओगे? आपको हमेशा बार बार बीमारी जो है ना आपको बार बार परेशान करती रहेगी कि अरे यहाँ पर कीड़े हैं, यहाँ पर मकोड़े हैं, यहाँ पर बैक्टीरियाज हैं, यहाँ पर जो है ये वायरस है, फलाना है। मतलब उसकी आंखें इतनी तेज हो जाती हैं, इतनी मतलब वो बीमारी है एक्चुअली। क्योंकि नहीं तो आदमी जी नहीं सकता। आदमी जिएगा तो उसको खाना खाने जाएगा तो बोलेगा खाने के अंदर इतने बैक्टीरियाज हैं, हाथ के अंदर इतने बैक्टीरियाज हैं। तो ऐसे बीमारी आती है। तो जब जो कोई लोग भगवान से मांगते हैं कि भगवान मेरी आंखें बहुत कमजोर हो गई, मुझे इतनी अच्छी आंखें दो कि मुझे सब कुछ दिखाई दे, तो भगवान ऐसी बीमारी दे देता है। अगर उसको मतलब भगवान को उसको भुगतना होगा ना, तो उसको भगवान ऐसी बीमारी दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भगवान करते हैं पर्याप्त मात्रा में करते हैं, और बहुत दिया है उन्होंने, तो हमको वही समझना है और अपने जीवन को जिस तरह व्यतीत होता है व्यतीत होने देना है। और भगवान मेन इज what we should always focus on praising the Lord and getting into his service। और वो कैसे कर सकता है? किसी को भी, जैसे पिछले क्लासेस के अंदर बताया गया, if you want to love the God, you have to serve the God. If you have to love the devotees, you have to serve the devotees। Hare Krishna। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। यस प्रभु जी, वो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर में भी वही बताता है कि सर्विस इज लव एंड लव इज सर्विस। हरे कृष्णा प्रभु जी। और एक कंपोजिशन श्रील प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में तभी भी मैंने सुना था प्रभु जी कि साइंटिस्ट लोग कंपोजिशन मतलब एक केमिकल यूज करते हैं, दूसरा उसमें कंपोज करके फिर कुछ बनाते हैं। H2O अगर एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद ने इसमें बताया कि
लेकिन वो तो ऑलरेडी है। तो जैसे आपने बताया डिस्कवर और इन्वेंशन, वेरी ट्रू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। दूसरा हुआ, आप ऐसी एग्जाम्पल के बाद प्रभुपाद के पास एक मारवाड़ी आया था जो बिजनेसमैन था, वो सीमेंट का बिजनेस कर रहा था। तो प्रभुपाद ने उसको बोला तुम लाइम कहाँ से ले आते हो? तो पहाड़ों से ले आते हो। तो बोला यानी तुम तो चोर हो, भगवान ने तुमको जो दिया है, भगवान उसी को तुम लेके तुम बेचते हो और तुम बोलते कि भाई ये मेरा है। बोला ये क्या बात हुई? तुम ऐसी चीज हो जो तुमने खुद क्रिएट की हो, ऐसी कोई चीज है तुम्हारे पास? तुम जो भी चीज क्रिएट करते हो उसके लिए तुमको जो चीजें चाहिए, जो तुमको रॉ मटेरियल चाहिए, वो तुम भगवान का दिया हुआ है। सो एवरीथिंग इज गिवन बाय गॉड। तुम अगर बोलेगा कि मैंने मोबाइल बनाया, तो मोबाइल किससे बना? प्लास्टिक के अंदर क्या है? प्लास्टिक कहाँ से आया? तो बोला पेट्रोल के अंदर से आता है। उसके बाद में तुमने इसमें सिलिकॉन जो चिप डाला है, वो क्या सिलिकॉन क्या है? मिट्टी से आया। तो एवरीथिंग इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज लॉर्ड। तो डोंट से दैट कि तुम क्रिएटर हो। तुम क्रिएटर नहीं, क्रिएटर इज ओनली वन। ही क्रिएट्स एवरीथिंग। तो ही हैज गिवन दैट इंटेलिजेंस। तुमको बुद्धि दी है, वो भी उसने दी है। नहीं तो इतने साल से तुमने पहले मोबाइल फोन पहले क्यों नहीं बनाया था? बनाते तुम 70s के अंदर, 80s के अंदर, तुमने 90s के अंदर मोबाइल बनाया, 50s में बनाते। तुम्हारे जो पेरेंट्स है उनको भी आसानी हो जाती, इतनी तकलीफ नहीं होती। मगर एवरीथिंग हैज अ टाइम, एवरीथिंग हैज बीन डिफाइंड बाय द लॉर्ड कि ये कब होना है, किसको ये इसका बेनिफिट मिलना है, वो सब लॉर्ड की मर्जी है। जब तक ये हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम लोग जो है खाली यही कहते रहेंगे कि ये मैंने किया है, और ये मैं बहुत मुश्किल है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं हो तो प्लीज यहाँ पर, मुझे जाना है ऑफिस के लिए। आज फर्स्ट डे ऑफ द वीक है एंड वी आर शिफ्टिंग टू द न्यू ऑफिस, Yes, so it would be a challenge for yes, me. yes, So please, can I yes, 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 move out? Yeah, Prabhu. yes, Thank you, Prabhuji. Prabhu. Thank you very much. Hare Satyaraj, take over. Yes, yes. Thank you, उद्धव प्रेश प्रभु, थैंक यू सो मच। आज किसका नरसिंह आरती है? I think Vidya Mata ji. विद्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, आप स्टार्ट आरती प्रभु यस 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 माता जी। नरसिंहदेव विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान। नमस्ते नरसिंह, नमस्ते